या आ रही है। ओके, थैंक्स मैम। मैम फर्स्ट कम फर्स्ट, आपने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, परसों लिखा है, यू हैव रिटन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी, जी डेटेड 12th of September। क्या है ये या लेटर, आपने क्यों आपको लिखना पड़ा प्रधानमंत्री को 7 years of struggle? या प्लीज। Sunil, I to me, you know how the time has passed, तो पता ही नहीं चलता. But या I had to write. I have to make noise. As a Gia's mother, I have to, because at that time no public was standing with me. Nobody stood by me, not even the Bollywood icons who took her space, who took her shared screen with her. Nobody was there. I was alone then, and I feel alone today. So I have to tell Prime Minister, I see Kangana Ranawat, I see others approaching governors and bigger leaders. So, this is not the first time I've written to Narendra Modi ji. I came on his Man Ki Baat. I wrote to him earlier also. I tried to meet him because my daughter is American and I'm British, and my other two daughters are British. So what happened? It is three nations together. She died in India, and she was American, and I'm British. So although my roots, I am Indian, and I'm very proud Indian. I still feel Indian. It is because of my children I had to take this citizenship. It's not that, it was out of that I wanted to live away from India. No, I still have a home there, and I still have a place there, and I still have friends and my families over there. So this time I had to write to him because CBI, actually, Sunil, is appointed by the central government, which is the Prime Minister's appointed joint directors and the directors. So my case is with CBI, and since 2015, and CBI, who was going on the right direction, actually was pressurized. They outright dismissed suicide story of police. At that time, nobody was with me. Today, when I look at the Sushant Singh case, every individual is standing. You know why? Because they understood the similarities in Jia and Sushant's case. They understood that Jia Khan did not commit suicide. They understood that they should have stood then with us, so that the criminal should have been punished, and Disha and Sushant would be alive. Because it's a serial killing. Same people involved, same group involved, same politician, same pressure of Bollywood icons. Everything is same. I'm not even afraid taking names, because I have reached that point that all the evidences are there. So now when the evidences are there, I had to write this letter to Prime Minister to say that your own CBI, own appointed CBI, needs to be given a wake-up call. मैम मैं आप आगे पूरा अपना जो रेलेवेंट पार्ट है वो तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। मैं सिर्फ 3 लाइन पढ़ के बताता हूँ, मैं पूछता हूँ, मुझे एक सवाल पूछना है, उसके बाद आप पढ़िए जो पढ़ना है। कहाँ थोड़ा से? हिंदी मिक्स पेज वन, पेज टू। समझते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश समझते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर। In this is just a request, आप अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलें। In this regard, I would humbly request, these are the last 3 lines of your letter, जो आपने आखिरी में 3 लाइन लिखी है, मैं सिर्फ वो पढ़ा। In this regard, I would humbly request for your time out of your busy schedule to meet for a few minutes to express my pain, and also plead to restart the case by capable and neutral Delhi CBI team so that justice can be prevailed. आपने reinvestigation की डिमांड क्यों की है मैम? It is reinvestigation in a sense कि जो CBI officers पहले involved थे और जो complicit हो गए, आप समझ रहे हैं? So if new SIT is formed within CBI under the supervision of Supreme Court or High Court, then the case will have a new look. It will be looked authentically, correctly, and surface the truth. Why? Because the evidences that are there, they are all concealed. And this is exactly what happens, Sunil. They take all the information from everyone.
And people think they are investigating, they are coming up with answers, they will come up with answers. We were same way, we were very anxious. We were waiting, or we were so happy. I had tears of joy when my case went to CBI, thinking that now the truth will come out, because the truth we already knew. And CBI took every information from everyone, for example, but told us a completely different story. I said, how come your story has suddenly changed? Because all the while that you were investigating, you were with us in communication over the phone and giving us the hope, yes, you are going to a right direction. Yes, you know it is a murder. Yes, you are looking into everybody's statement and doing the inquiry and investigating the forensic post-mortem doctors, all that you are doing it. Then suddenly what happened? Why did you give us a different story, all of a sudden? Today, when I look back, in today's day, Sushant Singh case, how they sabotaged, how the police has covered it up, it makes it very clear for me that exactly what happened. We're looking at the Bollywood politician. वो मैसअप के कारण आपको फिर से इन्वेस्टिगेट करना है। एक बार आपने जो कहा ना उसको हिंदी में भी बोलिए, ताकि जो लोग हिंदी दर्शक हैं वो भी समझ सके क्या कह रहे हैं। देखिए, सीबीआई के पास हमारा जब केस आया था, सवाल ये मैम, क्यों आपने री इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया? ये आप री इन्वेस्टिगेशन इसीलिए कि जो ऑफिसर्स ने जो ऑफिसर इसमें अपॉइंटेड थे, जिन ऑफिसर ने इसके खुलासों को दबा के रख दिया है और वो उनकी डायरी में ही बंद है या उनके दिमाग में बंद है, उनका खुलासा करें उन ऑफिसर्स के साथ में जो न्यूली अपॉइंटेड होंगे डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के थ्रू, बिकॉज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई has the power to form an SIT within CBI, कि वो नए ऑफिसर को चुने जिन्होंने इस केस को बिल्कुल नई नजर से देखें और उस सच की तरफ देखें और उस सच को बाहर निकाल के लाए, जो ये पिछले ऑफिसर जो बॉम्बे में हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस में या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में या क्रिमिनल के फादर के इन्फ्लुएंस में, बिकॉज ही इज अ पॉलिटिकल क्लाउड, तो उसके इन्फ्लुएंस में जो दबा दिया ना, उसको वो बाहर निकाल के लिया है। क्योंकि हमने तो उनकी खिचड़ी हमने खुद पका के उनको दे दी है। हमने उसको बिल्कुल साफ स्मूथ तरीके से पका के उनके हाथ में दे दी, 250 पन्ने की पेज, कि देखिए आपको इधर उधर स्कैटर कोई पेजेस को खोलने की जरूरत नहीं है, ये आप खोल के देख लीजिए, इसी में दोनों चार्जशीट का खुलासा है और सच भी सामने नजर आता है कि आज तक आप लोगों ने जिया खान की मौत की सच्चाई को सामने नहीं ला के रखा है, क्योंकि आपने उसका जो दुपट्टा जिससे वो पाई गई थी वो आपने फोरेंसिक डॉक्टर को नहीं दिया पता लगाने के लिए कि ये जो इंजरीज हैं इसके चेहरे के ऊपर, इसके गले पर, ये इस दुपट्टे से हो भी सकती है कि नहीं। ठीक है, फिर आपने दोनों टेलीफोन तो लिए इनके स्मार्टफोन, पर आपने इसका खुलासा नहीं किया ये कह के कि भाई हमारे फोरेंसिक के पास इतना टैलेंट नहीं है या कैपेसिटी नहीं है इसको खोलने की। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए कोई भी चीज डिलीट नहीं होती है, तो आप ऐसा करें कि जिया के और सूरज पंचोली के जो फोन है जो आपने कॉन्फिस्केट किए हुए हैं वो FBI के पास भेज दीजिए, उनके पास तो लेबोरेटरी है पूरा डेटा खुलासा करने की। हमने ये रिक्वेस्ट की है। तो फिर जो जॉइंट डायरेक्टर थे जो हमारी बात सुन रहे थे, लेटर का जो रेलेवेंट पोर्शन है अगर पढ़ सके ना इंपॉर्टेंट होगा। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें जो रेलेवेंट पोर्शन। देखिए मैंने जो दर्शकों को लिखा क्या, देखिए हमने हाँ मैंने इनको ये बताया है कि देखिए why I am writing and why for last 8 years I am fighting for my daughter's Jia Khan's case. The forensic evidence clearly shows that my daughter's death was a homicidal, not suicidal, and strongly suggests that she was murdered and then hanged to take it a look like a suicide. It has been more than 7-8 years and I have been persistently fighting alone for justice. As a mother of 3 daughters, this fight is not easy. And the Bollywood mafia and Maharashtra government and under NCP made it relentlessly difficult for me to get justice. The criminal Suraj Pancholi and his father Aditya Pancholi are still roaming free. Mr. Aditya Pancholi
is a kingpin of the drug cartel in entire Maharashtra and Goa, had also been caught red-handed with drug parcels, but was let due to his connections with the system. Now, this information I am saying because I am not an eyewitness, but I was given this information the day Jia died by the officer of the police and by the CBI officer who was investigating. And my question was, then what happened? Why did you not? Why are you telling me, first of all? Was drug involved? ये जो आपने पार्ट पोर्शन पढ़ा है मैम, अभी तो आपके पास और भी है, अब और भी पढ़ेगा, इसमें आपने सूरज पंचोली और आदित्य पंचोली का नाम लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनका नाम लेने के लिए आपके पास ये उस वक्त पुलिस ने मुझे इन्हीं के नाम लेके बोला था। पुलिस ने उन्हीं के हमको मालूम है, इनकी तो बेटी भी 2008 में हमारी कस्टडी में थी ड्रग के मामले में, और उसका बाप भी इसमें है। आप फिक्र ना करें, हम आपको जस्टिस दिलाएंगे। मुझे वादा किया था उन्होंने मेरा वादा तोड़ दिया, अपना वादा तोड़ दिया। जो उन्होंने जो ऑफिसर थे वहां पर, हेड ऑफिसर थे वहां पुलिस के, उन्होंने मुझे ये वादा किया था, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस मामले को। और हमें ये कहा था उन्होंने कि उनके पर बहुत बड़ा प्रेशर है। उन्होंने कहा हम पर बहुत प्रेशर है, पर हम इसको सजा जरूर देंगे। तभी 21 दिन की जेल कटवाई थी। 21 दिन की तो जेल काफी नहीं है ना। 21 दिन आपने क्यों उसको बिठा के रखा? और एक सवाल भी नहीं पूछा। जब वो बाहर निकला तो उसको सिर्फ मक्खी मच्छर और उसको बस अपने माँ बाप याद आ रहे थे। अब माँ बाप याद आ रहे थे और तो कुछ नहीं। उसने तो ये नहीं कहा कि मुझे टॉर्चर किया था, मुझे इंटरोगेट किया था, मुझसे ये पूछा, मुझसे वो पूछा, कुछ नहीं। सिर्फ मच्छर मक्खी और तुम ठीक तो हो, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है, इस तरह के सवालात पूछे थे 21 दिन उसको। और उसको घर का खाना आता था। ये आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? मैम आपने मेंशन किया प्राइम मिनिस्टर के लेटर में, इस फैक्ट को आपने इससे पहले कोर्ट के सामने भी रखा है? ये मैंने एक्चुअली सीबीआई के सामने रखा कि मुझे पुलिस ऑफिसर ने ऐसी बात कही थी। सीबीआई ऑफिसर ने खुद उस वक्त मुझे कहा कि यस, उन्होंने खुद उसको पकड़ा था। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? तो कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र स्टेट पुलिस के साथ था। अब इसका मतलब तो मैं समझी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो वो मुस्कुरा गए। अब उनकी मुस्कुराहट में मैं चुप हो गई। मैंने कहा इस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे मालूम है कि वो लोग ड्रग में थे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बता रहे हैं, मुझे पुलिस ऑफिसर ने बताया था। फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कितनी प्रॉपर्टीज हैं उसके पास में, कितनी दौलत है, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं तो लंदन में रहती हूँ, मैं तो बिजी हूँ अपने बच्चों को पालने में, अपने काम में। मैं ये चीजों की खबरें नहीं रखती। मुझे तो आदित्य पंचोली का कोई बैकग्राउंड भी नहीं मालूम था। मैं तो जब बंबई आई, जब मेरी बेटी इन्वॉल्व हुई उसके साथ, अप्रैल में जब मैं आई थी, तो मैंने छानबीनी करना शुरू की। तो किससे मैं छानबीनी करूंगी? उसके सगे दोस्त अंजू महेंद्रू से, जो मेरी भी दोस्त थी 30 साल से। तो उसने मुझे सारे खुलासे दिए, उसने मुझे बताना शुरू किया, और उसने मुझे कहा कि सूरज पंचोली और जिया खान एक साथ नहीं है। मैंने कहा ये कैसे कह रही हो तुम? तो कहते हैं कि उसके बाप ने हमको बताया कि वो एक साथ नहीं है, वो लोग ऑलरेडी, इनका रिश्ता टूट चुका है। तो मैंने कहा कि भाई 5 तारीख को, मैं 3 तारीख को आई हूँ, 5 तारीख को तो उसने अंजू महेंद्रू को आप कैसे जानती? अंजू महेंद्रू को मैं जानती हूँ जब से मैं खुद भी जब फिल्मों में आई, तो एक हमारे प्रोड्यूसर, कॉमन प्रोड्यूसर फ्रेंड थे, ओपी रलन साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तब सबसे पहली बार तब मैंने फिल्में ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मैं फिल्मों में मुझे शौक था, मैं ज्वाइन करना चाहती थी, मैं ट्रेनिंग कर रही थी। और मेरी कब की बात है? ये प्रोबेबली 76 नहीं 78 की होगी बात। तो ये 78 से शी हैज बीन अ फ्रेंड ऑफ योर्स, वो आपकी दोस्त रही है? नहीं, आई मीन 78 से मेरी मुलाकात हुई थी। मेरी दोस्ती, इसके साथ मेरी दोस्ती जो हुई है 98 से हुई है। 98 से हुई है, अच्छा। तो फिर अंजू महेंद्रू का क्या लिंक आ गया अचानक?
दोस्ती हमारी हुई धीरे धीरे, और फिर वो जब लंदन आती थी वो मेरे पास रहने लगी, तो इस तरह थोड़ी दोस्ती हमारी पक्की हो गई। तो इस तरह थोड़ी दोस्ती हमारी, एक सेकंड सॉरी, हाँ, इस तरह उसकी मम्मी से मेरी ज्यादा दोस्ती थी, और फिर धीरे धीरे इनकी फैमिली के साथ में मेरे ताल्लुकात बढ़ने लगे। और मैं उसके घर में आदित्य पंचोली को शायद 2 दफा मिली होंगी। जब मैं लंदन से आती थी तो कभी कभी वो पार्टी रखती थी। हाँ, उसके अंजू महेंद्रू का बर्थडे था, मुझे याद है, और वहां मैं पहली दफा कंगना रनावत को भी मिली थी, एंड वो थोड़ी सी देर के लिए आई थी। और राजेश खन्ना, कई एक्टरों को मेरी मुलाकात हुई थी वहां पर अंजू महेंद्रू के बर्थडे की पार्टी पर। तो वहाँ मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब। पहले आप ये लेटर खत्म कर लिए, बिकॉज़ बीच में छूट जाए। लेटर के जो रेलेवेंट पोर्शन खत्म किए, मैं वापस आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैंने इनको लिखा, मैंने कहा, सर, आई एम राइटिंग टू यू टुडे बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन and vision that your government has for the youth of India. New India has also witnessed major milestones and historic decisions making and mistakes corrected under your regime. Today, the whole world is keenly watching the events unfolding in the state of Maharashtra, the killing of innocent talents, and the drug mafia presence and dominance. Then I highlight about the Shiv Sena, what is happening. I said the Shiv Sena NCP-led administration has displayed the weakest intent to get justice for the murders of innocents. It will be only a miracle to see if Sushant Singh Rajput or Jia Khan get justice. However, it is important to mention that the display of strong willpower by national agencies, CBI, ED, NCB, in the investigation has brought a ray of hope to the faces of millions of fans across the globe today. Okay. When my daughter Jia Khan was murdered 7 years ago, her case was also transferred to CBI. When the Bombay High Court discovered how the case had been mismanaged by the Mumbai police, facts were ignored, evidences were misplaced and lost. However, Jia Khan's case was assigned to Bombay-based CBI, who got influenced by the NCP and the Bollywood mafia, and since then the criminals are getting complete protection. Now, to Prime Minister, I can blatantly, openly say these things, because these are the facts. Every citizen has a right. Every citizen has a right. I don't have to mince my words and hide and fear this thing like, oh, she's defaming. I'm not defaming anyone. I am talking about the facts. If you think it is you are being defamed, then you amend your behavior in society. When people raise voice, they give you a fear of defamation. They had filed a defamation against me. What happened? What did the judge say? That by pulling it out, bringing it, making it a case and giving it to a public, and then media is hovering over it, you're making yourself more, your evil more publicized. These are the facts. Her daughter has been killed, so that defamation thing went into the bin. Who I was defaming? I was not defaming anyone. I was talking about the people who are criminal in this industry. आपके अगेंस्ट में किसने डिफेमेशन फाइल किया था? Aditya Pancholi and Zarina Wahab. क्यों? Because I had highlighted whatever Anju Mehindru had told me. That time I had a Twitter account. So I had highlighted what Anju Mehindru told me, कि Aditya Pancholi, he used to beat Kangana Ranawat, and I remember her coming at middle of the night and, crying, all bruises and all. So I tweeted about it, that the father and the father's sister who came up to me and said, she approached Aditya Pancholi, her brother is very criminal. She and he and Zarina Wahab were planning to kill her as well, run their car over her. So these things I tweeted. Whatever I was doing at that time. Pardon? आप कंगना रनौत की बात कर रही हैं? मैं कंगना रनावत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आदित्य पंचोली की बहन की बात कर रही हूँ। उसका नाम श्रद्धा है। या
श्रद्धा से मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया था। तो वो जब मैं ट्वीट कर रही थी तो इन लोगों ने उसके ऊपर डेफेमेशन लगा दिया, डेफेमेशन कि मैंने कहा कि सूरज पंचोली ने मेरी बच्ची को मारा है, राइट। अच्छा, तो कुछ वक्त के लिए मैं खामोश थी, क्योंकि मैंने सीबीआई और पुलिस को कहा चलो तुम ही लोग खुलासा करो, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं चुप रहती हूँ, आप लोग खुलासा करो। उन्होंने धीरे धीरे सिंडिकेट मीडिया को पैसे दे दे के सबको अपनी लपेट में बिल्कुल मेरे केस को दबा दिया। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया सुनील, मैं आज भी लड़ रही हूँ। मैंने कई दफा मैं मन की बात पर आई हूँ प्राइम मिनिस्टर के साथ। कोर्ट में क्या हुआ उस डिफेमेशन नोटिस का? कोर्ट में क्या हुआ? डिफेमेशन कोर्ट ने उसको डिसमिस ही करा दिया। अच्छा। उसको डिसमिस करा दिया और कहा बिकॉज उल्टा मैं if I would have put defamation on them, it would have been more in millions. Why? Because Zarina Wahab said I am doing the murder angle because of money. She was defaming him, and they were concocting a story that जिया की और राबिया की तो बनती नहीं थी, माँ की तो बनती नहीं थी, माँ मारती थी, उसका तो खून निकल रहा था। इतना झूठ मलाइन किया मुझे, और मैं और मेरे बैकग्राउंड के बारे में they were digging and maligning me and speaking all the rubbish. or Jia Khan, they were exactly what they tried to do in Sushant Singh case, where they were maligning the family कि family है सब कुछ, family की वजह से ये सब कुछ हुआ, family के ऊपर ही तोहमत लगा दो। आज मुझे सुनने में आता है कि रिया चक्रवर्ती ने फैमिली के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगा दिया। इनका बस चलता सुनील, ये तो मेरे पर भी केस लगा देते, ये तो उल्टा आरुषि की तरह मुझ पर लपेट देते कि ये माँ ने किया है। वो तो इत्तेफाक से सीसीटीवी था और फैक्ट्स हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, सब सारे फैक्ट सामने नजर आ रहे थे, तो वो कुछ कर नहीं सके इस मामले में। बिकॉज इनको ये भी मालूम है ना कि जो इन्वॉल्व है, जो क्रिमिनल इन्वॉल्व है जिया के साथ, उसका बाप, उसकी फैमिली क्या बैकग्राउंड से आती है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैं जरीना वहाब के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं आदित्य पंचोली की बात कर रही हूँ, जिसका पब्लिक डोमेन में खुला वो है कि what a kind of a man he is, how abusive he is towards women and what all he does. So obviously, the son who used to beat my daughter, I told her not to go back. I said stop your connections with him. जब वो वापस गई, because she had few contracts signed up, again he started going up to her. I'm sorry, I will change, I've got so many letters, I'm very sorry, repeated sorry. तो मैंने भी छोड़ा नहीं, मैं वहां पहुंच गई, मैं अपनी बच्ची के पास पहुंच गई, and he was telling her, tell your mother not to come. अब तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा, तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करोगी, तुम मुझे पहले जैसा प्यार वैसे भी नहीं करती, लंदन चली गई, तुम बिल्कुल कोल्ड हो गई। ये बातें कर रहा था उससे, और वो बेचारी उसको साबित कर रही है। दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। जब आप गैस लाइटिंग करने लग जाते हैं ना, ओ अब तो तुम पहले जैसे प्यार नहीं करते हो, ओ अब तो तुम्हारी माँ आ गई है तो तुम्हारे पास सारा वक्त तुम्हारी माँ के साथ है, क्योंकि उसको मालूम था कि जिया की वीकनेस उसकी माँ है, और उसकी माँ का दिल जो है वो जिया के अंदर है। That is why these people are, narcissists. They are gaslighters. They are control freaks. They want to empower themselves on these victims. And unfortunately, Jia allowed him to do it. And the day she gave up, the day she took the control back, it was too late. Because these kinds of people, they don't. पीएम के चिट्ठी में आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली का नाम लिखा। Is आदित्य पंचोली that big? मुझे मतलब I don't know. Is he that big? Aditya Pancholi, according to from what I did not know Aditya Pancholi, but from what I heard from Anju Mahendru, who told me categorically, I came to know about Aditya Pancholi only from Anju Mahendru. In your letter to the Prime Minister, you're saying Mr. Aditya Pancholi is a kingpin of drug cartel in the entire Maharashtra and Goa. These are very serious charges. Yeah, because this is exactly what a CBI officer told me. This is exactly what CBI officer told me, and I can take his name and I can confront him. I am not in fear.
And you have put this how do I know? On record before CBI. Pardon? And you have put this on record before the CBI. Yes, I have. I have also written a letter to DCBI asking to please, now looking at the present circumstances, how the drug cabal is being, how the drug cartel is being exposed. Right? Where is the drug thing? The word drug came from the day Jia died, from police officer. The drug word came from CBI investigating officer. So these police officers and the CBI officers know who are the drug cabals. They already have a long list. There are nothing hidden from these officers. But they just want to know, what do we know? To tell you frankly, I knew nothing. I came to know when I reached Bombay in the month of April. My daughter died in June. I was there constantly with her. It was never that I was not there. In 2012, she left London after living with us for a year, to taking a break from film industry. She went back because Akshay took her back. And in September, she was being stalked by Suraj Pancholi. That is how she got trapped by Suraj Pancholi. She was bombarded with love, gifts, khana, roz ka tiffin. All these stories will not come out, Sunil, unless like you are talking to, asking me and giving me opportunity to speak. That is how people will know about my story. That is how people will know the truth. If you're writing to the Prime Minister, who am I to stop you from speaking? The Prime Minister, obviously, you have already addressed the Prime Minister. और क्या लिखा है मैम लेटर में? पहले वो लेटर कंप्लीट कर दीजिए. और क्या लिखा है जो रेलेवेंट आपके मुताबिक? Let's complete that letter first. Yeah. So anyway, I will go. Sunil, I'll connect you at the end. After she finishes, I'll connect you. So in my fight for justice, I have also reminded the US Embassy, because my daughter was American, and the British High Commission, because I am British and her two sisters are British. They have also encouraged me to go ahead and make a request to everyone possible so that an adequate support is extended to the case for its reopening and closure to the right path of truth and justice. I continue. Today, I look up to you with a heavy heart and hope. I earnestly plead to you about the case of my daughter Jia. My grief and pain as a mother is not just words. Truth and justice must be served, and only you have the power to ensure this. May God guide you and help us. Please let me know what are your plans and advice for the victim's mother and family. Respected sir, you have the will and power to clean up the corrupt Bollywood swamp that controls the Mumbai police and Maharashtra government, and the Indian people who are looking up to you to bring about change. This will allow the young talents to dream again fearlessly and look up to the sky and fly. In this regard, I would humbly request for your time and out of your busy schedule to meet for a few minutes to express my pain, and also plead to restart the case by a capable and neutral CBI team so that justice can be prevailed and I can get closure. Now, I'm sorry, Sunil. I don't know why. Always on your channel, I get emotional. But yes, Sunil. Word closure is becoming a joke. They tell us, madam, forget about it. Let's move on. Every day there are new cases coming up. I will not forget it. They have got hundreds of cases. I've got one case and I'm at it. Similarly, today, the entire India, not only India, even in London, I see children, youth fighting for justice, because it is not just the death of these innocent, but justice word has become a very crucial thing now.
People want closures. These institutes of law enforcement have been created to give us justice, to look at and hear the voice of a common person, Sunil. Who do we go to when such things happen? Then why do we have to call police? Why do we have to demand CBI? To know the truth and sit on it? And then cherry pick who they want to give justice and who they want to release? That's not fair, right? When they want to do it, Sunil, the police went all the way in Peter Mukherjee's case and got the closure because it suited them, because it is to their benefit, it is their vested interest, because some vested interest was involved in it. From us, that is why they want to find out how rich we are, how poor we are. What has justice? Justice is blind. They don't see rich and poor. Justice is for all. क्लोजर मैम कैसे मिलेगा? आप बोल रही हैं क्लोजर चाहिए, क्लोजर कैसे मिलेगा? अब आप बताइए, आपसे मैं पूछती हूँ, सुशांत सिंह को क्लोजर कैसे मिलेगा? आज सुशांत सिंह को क्लोजर इसीलिए मिलेगा क्योंकि जनता खड़ी है। मुझे भी क्लोजर तभी मिलेगा कि जब जनता मेरे साथ होगी, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। I had been saying it is a serial killing. You open Sushant Singh case, you will find Jia Khan's killer. You open Jia Khan's killer, it is linked with Sushant Singh case. It is linked with Disha Salian case. And I'm not wrong in saying, because you can see why people are posting, oh, Suraj was in the party, oh, Aditya Pancholi was seen on the crime scene. Aditya Pancholi was seen in our crime scene also. Did police investigate? Did CBI investigate? Did they ask him question? They are cherry picking. Why? Because of the pressure. And it is so evident now. Look at the pressure Maharashtra government had put just to sabotage Sushant Singh's death and called it a suicide, and they wanted to shut the case. Had it not been for every individual fans who loved him dearly, if they would have not raised the voice, do you think it would? Poor family of Sushant Singh, of Vidya Balan, Divya Bharti, of Disha Salian. You know, Disha Salian and Divya Bharti family has taken a sideline, suppressed their feelings, because they know they don't have a voice, because they don't have people who will listen to their story. Sushant Singh father and sisters, if the public was not standing, they would have also probably taken that course. I did not. I was intimidated by the top names of the lawyers and police and officers in the courtrooms, and also by the judges. I didn't get intimidated because I'm standing for truth. And if I am alone, truth always stands alone. Today, the whole public is there. And I wish that they stay to the end and see the closure. Because I am not sitting over here judging Sushant's family. आपको ऐसी फीलिंग आती है कि अगर जिया खान के केस में आपको लोगों ने सपोर्ट किया होता, या लोग खड़े हुए होते, या जिस तरह का कैंपेन चला है सुशांत के लिए, अगर आपके टाइम में चला होता, जिया के लिए चला होता, तो आपको जस्टिस मिल गया होता? आपको ऐसा लगता है? देखिए, in Jia Khan's case, police immediately knew who the criminal is, right? And they arrested him. But they also compromised because the officer told me he's got a lot of pressure. He's been told not to touch this case because of his mafia connection, because of his political connections and whatever. But at least they established, yes, there is a criminal. In Sushant Singh case, they are still looking, searching with the torchlight. Yes, correct. Am I right or Sushant Singh, Sunil, if public was there with me at that time, if Mahesh Bhatt did not come to endorse depressed, and when I raised voice, he said, "Tum chup ho jao, tumhe bhi injection deke sula denge," right? And dominate the syndicate media. If Salman Khan was not standing by the accused Suraj Pancholi and making him a hero and glorifying him,
My Jia Khan would have got justice, and Sushant would have been alive, and Disha Salian would have been alive. Because why? Because it would have been a public example. It would have been an example that, law and enforcement does not spare anyone. Law is above everybody. Today, you are trying to prove that law is not above everyone, but the politicians and the mafia is above law. So my request to Prime Minister is that nobody, Constitution of India says nobody is above law. The world law judiciary says nobody is above law. So who is going to listen to me except Prime Minister of India? Because my daughter was killed in that land. And he is the leader. He is one voice. If he will say to CBI to reopen, and I want closure in this case, to tell you frankly, it will be the next hearing and closure will be there. It will be that quick because CBI has everything in them. CBI officer told me in front of JD, that joint director, that I have got information, but I have not put on the chart sheet for various reasons. So okay, for various reasons, but tell us, we are the victims. We want to know what are your various reasons. We want to know what are those things that you're hiding. If I will not raise voice, what is concealed will be concealed forever in the black hole. So I want to see what is being concealed. That is why JD officer asked the CBI, Mumbai's CBI officer, where is the ligature? Why did you not send the phone to FBI? Why did you not send the ligature to forensic department to analyze whether किया मैम कि जिया खान अमेरिकन, आप अब पहले आप इंडियन थी, अब आप ब्रिटिश हैं, आपकी दो बेटियां ब्रिटिश हैं. yes. इंडिया में ये केस हुआ, इससे प्रॉब्लम हुई क्या? इससे प्रॉब्लम हुई? इंडिया में केस हुआ है, इंडिया में मेरी जिया खान का मर्डर हुआ है, right? The word murder and justice is universal. Now, because your vested interest is there, so you put these barriers of jurisdiction. It is not that the Indian government, when Americans were interfering, because she was American, and Americans were interfering with CBI, the CBI officer said, please leave us alone. We will let you know as the investigation develops. Then what happened? They did not. They said that it is our jurisdiction, so they do what they want. So imagine what is my situation? Where am I? The Indians are not, officers are not going to listen to me. They will protect their Indian. The Americans are not listening to me because it's a jurisdiction. The British are not listening because the girl was American and in India, and they are just confusing me. Who do I go to? So I will go to every leader. Yeah. But I think I will get closure when public is with me. Because and sooner or later, that time the public did not listen to me. The public did not listen to me. Today they say, we wish we had heard you. We wish that we had given Jia justice and this would have not happened. Even today also, if you're not going to hear me, even today, what are you waiting for? Another death to happen? Another loved one to go away? You have to listen to what I'm saying, because I am not saying this out of vendetta or out of revenge. As in your previous interview also, I told you, I have no revenge. And I'm very clear about it. I have no revenge and personal equation or agenda with anyone, neither Bollywood icon, neither Salman Khan, neither police officers, neither CBI officers, with nobody. I, as a humble family of mother of three, I want a closure, that we know the truth, and the truth needs to be acknowledged by the judiciary so that this does not happen again and the perpetrator should be punished. मैम आपने अंजुम महिंद्रा का जिक्र क्यों किया?
बिकॉज अंजू महेंद्रू का इसलिए जिक्र किया मैंने कि when my daughter got involved with Suraj Pancholi, Anju Mahendru told me the first time that Aditya Pancholi was very upset that Jia and Suraj are together. Because पेपर में आ गया था. तो उस वक्त से अंजू और and myself were talking about this relationship. You understand me? So एक दिन मुझे याद है 7 अप्रैल की बात है, आदित्य पंचोली वहां अंजू के घर आए हुए थे, दोपहर का वक्त था, हम वहां बैठे हुए थे. आदित्य पंचोली ने सलाम किया, बात किया, कब आए, कैसे है, और कोई जिया का सूरज का कोई जिक्र नहीं किया. 5 मिनट के बाद वो चले गए. तो मैंने अंजू महेंद्र को कहा कि इन्होंने तो कुछ जिक्र भी नहीं किया जिया के मामले में, सूरज के मामले में. तो अंजू ने कहा कि अकॉर्डिंग टू आदित्य पंचोली, बोथ ऑफ देम, जिया एंड सूरज, आर नॉट इन रिलेशनशिप. तो मैंने कहा अंजू महेंद्रू आपकी फ्रेंड थी 1998. हाँ, 98 से. ओके, 1998 आप उनसे मिली थी 78 में, लेकिन आप उनकी फ्रेंड बनी 1998, और 1998 से 2013 यानी 15 साल, 15 साल की आपकी दोस्ती थी. और उस दौरान आप जब मिली मुंबई में, तो आपने एक्सपेक्ट किया कि अगर सूरज और जिया रिलेशनशिप में है तो आदित्य इसके बारे में, आदित्य पंचोली इसका जिक्र करेंगे अंजू महेंद्रू से, बिकॉज अंजू महेंद्रू इज माय फ्रेंड. हाँ, और अंजू महेंद्रू ने जिक्र किया था मुझे जब पेपरों में आया था ये सब कुछ, तो जिक्र किया था मुझसे. तो फिर मैंने कहा, तो उसने कहा कि मैंने आदित्य पंचोली को जवाब दिया, मैंने कहा कि अरे छोटे हैं, बच्चे हैं ये लोग, दे विल वीन ऑफ. don't be too harsh, they will wean off. And she used to say कि सूरज जो है वो बहुत डरता है अपने बाप से. मैंने कहा कि हाँ, मुझे जिया बताती है कि उनके घर में बहुत मारम पीटी वगैरह चलती है, और जरीना वहाब विंडो पर्दे गिरा देती है जब फुल मून होता है. कहती है कि आदित्य का मानसिक वो है जो ही इज बाइपोलर, और काफी झगड़े होते हैं फुल मून के वक्त. तो हम थोड़ा सा हंसे, और ये बातें जिया ने मुझे बताई थी, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे, बताया होगा सूरज ने उसको. तो इस तरह की बातें हमारी आपस में होती थी. एंड तो अब क्या हुआ कि जब मैं कश्मीर से आई, 2 तारीख को मैं कश्मीर से आई, तो अंजू ने मुझे कहा था तुम कश्मीर जा रही हो तो मैं एक काम करो, मेरे लिए कुछ चिलगोजे और बादाम ले आना. कौन सा 2 तारीख? 2013 की बात है, और मई का महीना था, मैं कश्मीर जा रही थी. तो जून की, हाँ, 2 मई, 2 तारीख या 2 तारीख? नहीं, 29 को मैं कश्मीर गई हूँ, 29 मई को, और 2 जून को मैं वापस आई थी. अच्छा, 2 जून 2013 को आप कश्मीर से लौटी. ओके, 2013. और जिया की डेथ 3 जून को हुई है, राइट? हाँ, जिया की डेथ 3 जून रात को हुई है. अच्छा, ओके, ठीक है. तो 2 को मैं गई थी अंजू को मिलने, और उसकी माँ के लिए कुछ मीठा वीठा लेके गई. फिर 3 को मुझे एलर्जी हो रही थी, मुझे बुखार सा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. तो अंजू ने मुझे पूछा शाम को कि तुम क्या कर रही हो, कुछ नहीं कर रही है तो आ जाओ. तो मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत कोई खास नहीं. अरे आ जाओ थोड़ा सा. मैंने कहा कौन कौन है? कहते कोई नहीं, मम्मी, माई सेल्फ, और मम्मी की एक कोई दोस्त आई हुई थी. तो मुझे नहीं मालूम था वहां पर, कि मुन्नू का तो ऐसा है, मोइन बेग तो वहां रोज जाता है. उसने उधर अंजू महेंद्रू के घर को शराब का अड्डा बना रखा है. वहां तो रोज जाके वो 8 बजे से बैठता है 11:30 बजे तक, और सिर्फ शराब पीता है. इट इज, चाहे वो बरसात हो, चाहे बर्फ पड़े, चाहे आग बरसे. तो दोनों की बड़ी कड़ी दोस्ती है. तो वहां मैं पहुंच जाती. मैंने बेबो को कहा, बेबो इज जिया. मैंने कहा बेबो ठीक है, अंजू बुला रही है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए. तो कहती है हाँ मम्मी, मैं अपना गेम ऑफ थ्रोन जाके देखती हूँ फैजान के साथ, ऑपोजिट बंगलो में, उसका जो कजन है, देख कर आती हूँ मैं. तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी 1 घंटे में आ जाऊंगी. तो जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो 9:30 बजे करीब, 9:24, 25 में मैं जाती हूँ वहां 9:15 पर.
तो मुझे बेबो का फोन आता है, कहती है मम्मी द प्रोड्यूसर्स हैव साइंड मी एंड नाउ दे वांट मी टू पुट ऑन वेट। तो हंसने लगी, कहती है 1 हफ्ते में मैं कैसे वेट कर लूं। मैंने कहा बेटा तुम शूटिंग लंदन में कर रही हो तो यू विल पुट ऑन वेट, डोंट वरी अबाउट इट, और खुश रहो, खाती पीती रहो और मजे करो, जैसे आम माएँ बातें करती हैं। अंजू महेंद्रू मेरे पास बैठी हुई थी जब ये फोन आया था, और पूछा भी उसने मुझसे कि कौन है। मैंने कहा बेबो है, उसने हैदराबाद में 3 फिल्में साइन कर ली हैं। तो कहती है अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो कह रही है कि प्रोड्यूसर वांट हर टू पुट ऑन वेट, क्योंकि साउथ इंडिया में तो दे वांट हैवी एंड जिया वाज अ वेरी स्लिम गर्ल। तो उसके बाद थोड़ी सी देर में एक और कोई साउथ इंडियन फिल्म साइन की जी, साउथ हैदराबाद में। तो थोड़ी देर में वहां मुन्नू बैठा हुआ था, मुन्नू इज मोइन बेग। तो मोइन बेग को एक फोन आता है, तो कोई पूछता है फोन पर कि कौन कौन बैठा हुआ है। तो फिर अंजू ने कहा कौन है, तो कहता है कि निर्मल है ना। निर्मल इज अनदर नेम ऑफ आदित्य पंचोली। तो तब मुझे नहीं मालूम था, मैंने कहा कौन है, कहते आदित्य पंचोली पूछ रहा है। तो वो बता रहा था कि यहाँ राबिया बैठी हुई है, अंजू है, और मम्मी है उसकी, ये सब बता रहा था। 5 मिनट में आदित्य पंचोली आ जाता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई कविया नाम की लड़की थी, और वहां बैठ के फिर ये लोग हंस रहे हैं। और आदित्य पंचोली को मैंने सलाम किया, क्योंकि पहले भी मैं एक दफा मिली थी 7 अप्रैल को। तो इस दफा इसने मुझे जवाब नहीं दिया और मुझे घूर घूर के देख रहा था, चुप एक कॉर्नर में बैठ के। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैं 5 मिनट में निकल गई। तो ये होगा कुछ 11:05 पर। 11:05 के दरमियान मैंने अंजू के नौकर को कहा रिक्शा ले आओ, तो वो रिक्शा लेकर आ गया और मैं वहां से निकल गई। मैं 11 बज के कुछ 12-13 पर अपने घर पहुंच जाती हूँ, और वहां पर फिर अपने घर रिक्शे वाले को पैसा दे के मैं अपने अपार्टमेंट में जाती हूँ। अपार्टमेंट में जाती तो मैं ये हादसा देखती हूँ। अब आप समझ रहे हैं, मैंने 11:20 पर अंजू महेंद्र को फोन किया। अब ये टाइमिंग्स मुझे कॉल लॉग से मिली। जब मैंने सीसीटीवी देखा जो पुलिस के पास 10 दिन से था, तो उसमें तो साफ नजर आ रहा था कि 11:23 पर मैं एंटर कर रही हूँ और 11:20 पर मैं फोन कर रही हूँ। तो तब हमें पता चला भैया ये तो सीसीटीवी बिल्कुल ही टैंपर्ड है। इसकी टाइमिंग्स तो देखिए भाई, मैं आऊंगी गेट पर, रिक्शे को पैसा दूंगी, मेरे पास चेंज नहीं था, वॉचमैन से चेंज मांगूंगी, फिर अपने घर पहुंचूंगी, सीढ़ियां चढ़ूंगी पहले माले पर, फिर दरवाजा खोल के अपने घर अपने कमरों में जाऊंगी, देखूंगी, तब तक तो कम से कम 5 मिनट तो निकल गए होंगे, राइट। तो 11:20 पर कॉल लॉग दिखाता है कि मैंने अंजू महेंद्र को पहला कॉल मारा, क्योंकि लास्ट कॉल उसी का था मेरे फोन के पर। तो वो उसमें जो मेरा रिएक्शन था जिया को देख के, जो मैं उसके पांव जो हैं, जैसे सुशांत सिंह का केस था बिल्कुल वैसे ही उसके पांव पलंग से लगे हुए थे और नीचे थे पलंग के। तो भाई उसके पास तो पलंग है ना खड़े होने के लिए, और अगर कोई सुसाइड नहीं करना चाह रहा तो इतनी इंजरी मार्क्स कैसे, उसके हाथ पे, उसके गले पे, उसके कान के पीछे। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें तो बिल्कुल आउटराइट कर देते हैं ये लोग कि बॉडी भी चली गई है, तस्वीरें भी गायब कर दो। किस तरह मुझे तस्वीरें मिली थी, एविडेंस तो तस्वीर है ना। मैं अंजू महेंद्र को बोलती रह गई इसकी देखो कितनी इंजरीज हैं। कहती है शट अप राबिया, ये तो सुसाइड है। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम है, तुमने कैसे कह दिया ये सुसाइड है। मैंने इसको बहुत मना किया था सूरज पंचोली के साथ दोस्ती करने के लिए। कहती है अब उस लड़के का नाम मत ले, ये लोग ये इसका बाप तो बहुत पावरफुल है, ये तो तुमको मरवा देगा। और मेरे पास बैठी हुई है कि मीडिया से ये मत बात करो, मीडिया से वो मत बात करो। मैं रो रही हूँ, चुप हो जा, रहने दे, उसने तेरा सोचा नहीं। इस तरह का अंजू महेंद्रू और आदित्य पंचोली और मोइन बेग ने मेरे क्राइम सीन को मैनेज किया। जिस तरह संदीप सिंह और वो सिद्धार्थ पठानी और रिया चक्रवर्ती मैनेज कर रहे थे ना सुशांत का केस, इस तरह यहाँ मेरे 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 बच्ची की डेथ के क्राइम सीन को मैनेज किया।
आदित्य पंचोली पुलिस ऑफिसर, जो ड्यूटी ऑफिसर जो ड्यूटी पर नहीं थी, उसके साथ फोन पे लगा हुआ था। यह हमें आरटीआई से पता चला, यह हमें आदित्य पंचोली के स्टेटमेंट से पता चला कि पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था वो। तो पुलिस को फोन किसने किया, पुलिस को बुलाया किसने? हमने तो नहीं बुलाया। हमारे सामने तो हमारी बच्ची है, हम खुद भी बेहाल है, नम है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पुलिस को बुलाया किसने? पुलिस आई कैसे वहां पर? आप समझ रहे मेरी बात? और पुलिस आते के साथ ही कहती है, जो भी इंस्पेक्टर आया था, कि ये तो फाउल प्ले है, यहाँ तो ग्रिल्स भी नहीं है, ये तो फर्स्ट फ्लोर है। माय गॉड, ये तो बिल्कुल कितना लो है। और देखा उसकी जिया की बेडरूम की विंडोज भी, उसके लॉक्स टूटे हुए हैं, उसके एंट्रेंस पे बायोमेट्रिक लॉक है, जो दोनों के पास, सूरज और जिया दोनों के पास में कॉम्बिनेशन था। उधर चाबी की जरूरत नहीं होती। और मुन्नू फिर 3 बजे जब पुलिस चली गई, सब सफाचट हो गया। हम और हमारे दोस्त बैठे हुए, तो आदित्य पंचोली के साथ आता है घर के अंदर। आदित्य पंचोली आता है, सीधा क्राइम सीन पे जाता है, उस कमरे में जाता है, वो देखता है पंखे से लेके कहा घूमते हैं हमारे घर के अंदर, हमारी बच्ची का ट्रैक सूट मिसिंग है। और कहता है, देखते के साथ कहता है, अरे ये तो बच्ची थी। और गाली देता अपने लड़के को, कहता है उससे तो अपने करियर की वाट लगा दी है, मैंने उसको बहुत मना किया था कि तुम वो हरकतें मत करना जो मैं कर चुका हूं। आपने भला बताइए कौन सी हरकतें की हैं? ये सारी, आज मैं देखती हूँ सारी पब्लिक क्योंकि शोर मचा रही है, और सीबीआई, एनसीबी और ईडी सब लोग पूछताछ कर रहे हैं हर एक से, और स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं कि ड्राइवर भी बात कर रहा है, फला भी बात कर रहा है, एवरीबडी इज कमिंग फॉरवर्ड। हमारी केस में तो नहीं हुआ ना। मेरी तो ट्रेजेडी यही थी कि मैं ही खुलासा करती रही, मैं ही सब कुछ बटोरती रही, मैं ही अपने जुहू पुलिस जो इंस्पेक्टर थी उसके पांव पे पड़ी कि मुझे तस्वीरें दे दो, आपके किसी काम की नहीं है, आपने तो केस बंद कर दिया है, आपने तो क्रिमिनल को छोड़ दिया है, वो तो हिमाचल चला गया है, उसके लिए तो सलमान खान उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, हीरो बना रहा है। आप समझ रहे हैं वो दर्द से मैं गुजरी। ये रीजंस है कि आप चाहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस पर री इन्वेस्टिगेशन पूरे केस का फिर से, आप मुझे बताइए, और है कोई प्राइम मिनिस्टर के अलावा इस दुनिया में? है कोई? मुझे बता दीजिए। मैं किसके पास नहीं गई हूं, मैं जाके मिल चुकी हूँ ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई इन दिल्ली, मैं मिल चुकी हूँ सब लोगों को, मैंने सबके सामने अपने अपने केस का खुलासा रख दिया है। यहाँ क्वीन काउंसिल्स ने, पैनल ऑफ क्वीन काउंसिल्स ने रिपोर्ट रिव्यू बना दी है स्कामेंस सोलिसिटर्स को हायर करके कि इस केस को देखिए। यहाँ तो ना पुलिस ने ना सीबीआई ने कंक्लूड किया है कि जिया खान की डेथ हुई कैसे। मैं एक बात कहती हूँ सुनील, सुशांत सिंह केस के लिए और जिया खान केस के लिए, अगर कह रहे हैं कि वो ड्रग लेता था, जिया खान के लिए कहते हैं वो डिप्रेस थी, सुशांत सिंह के पास काम नहीं था, जिया खान के पास काम नहीं था, ये सारी कहानियों को अलग रख दो। एक बात मुझे, एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन बताइए कि ये है आपका लिगेचर, जैसे कि ये मसलिन दुपट्टा है, राइट, और वो इंजरी मार्क्स हैं दोनों के केस में। मुझे एक प्लॉजिबल रीजन बता दीजिए कि ये हुआ कैसे, मुझे फैक्ट्स बता दीजिए। मैं कहानियों में नहीं जाऊंगी, मैं फैक्ट्स मुझे बताइए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितने पिक्चर्स हैं उसी ने बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए। जिया खान के पिक्चर्स नहीं आपने देखे नहीं? अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, मैं दिखा सकती हूँ आपको, आप देखिए, आपको मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिया खान के केस की, ये देखिए। और आपको पीएम मोदी पर क्यों भरोसा है इतना? आपको क्यों लगता है पीएम मोदी कर सकते हैं? क्योंकि he is the prime minister, his voice is the ultimate voice, he is the prime minister. I don't think so I can use any other word beside that he is a prime minister.
ये देखिए, और आपने वक्त भी मांगा उनसे, आपने टाइम मांगा है, आपको लगता है वो टाइम ये देखिए, उनके पास? ये देखिए, ये देखिए। ओ माय गॉड। हाँ, ये इसको आप सुसाइड कह रहे हैं, और वो भी इस ऐसे मलमल के दुपट्टे के साथ। ठीक है, जब मैं उनके पास गई थी, फोरेंसिक डॉक्टर के पास गई थी, गवर्नमेंट के फोरेंसिक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट पिक्चर दैट पुलिस हैज गिवन यू। क्यों? क्योंकि ये बैक ऑफ द नेक देखो, बेल्ट का मार्क, ये दुपट्टे का मार्क हो सकता है सर? एक और आपको दिखाती हूं, फिर आप बताइए, ये दुपट्टे का मार्क है। कान के पीछे देखिए ब्रूसेस, गले इधर देखिए रिंग मार्क, दिख रहा है। गले पर देखिए। फिर एक और आपको मैं दिखा देती हूं, इस पिक्चर में देखिए नकल के प्रेशर पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको सर? राइट। हाँ, आपको एक और दिखाती हूँ, जो जिस जिस पिक्चर ने हजारों सवाल खड़े किए हैं। ये मार्क कैसे आया है? इम्प्रिंट ऑफ अ रिस्ट वॉच। हो भी सकता है, ये पता लगाना चाहिए ना पुलिस को, सीबीआई को। ये तस्वीरें मुझे पुलिस से मिली हैं ऑफिशियली सर। उस रात को, ये है रात का, हम कभी ब्लाइंड्स नीचे नहीं रखते थे, और लिगेचर आपको दिख रहा है, ऑफिशियल लिगेचर ये लटक रहा है। पुलिस ने ये तस्वीर दी है, पर पुलिस ने वो नहीं दी कि पंखे पर नॉट कैसे लटकी हुई है, कैसे बंधी हुई है। और नीचे पलंग था। इंसान सुशांत सिंह और जिया खान अपने आप को मार पीट के और टंग जाएंगे। और अगर कहते हैं पुलिस ने तो पहले, और ये बड़ी शराब में धुत थी, फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा अगर इतनी कैपेसिटी की शराब ली है किसी ने तो वो इनकैपेसिटेटेड होगा, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो खड़ा ही नहीं हो सकता। इतनी शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि आप कहते हैं कि द क्रिमिनल्स कैन आउटस्मार्ट सीबीआई एंड पुलिस। No criminals till today have ever outsmart these people. We are not intelligent people. We are not investigators. We are not forensic experts. But we have an experience. मैं जितनी बातें कर रही हूं अपने अनुभव से बात कर रही हूं। जो मुझे दर्द हुआ है, मेरा अनुभव है ये। और मैं 7 साल से बंबई, मेरा आप हिसाब लगा लीजिए, माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ वी हैड बीन गोइंग ट्वाइस अ मंथ। आप पढ़ रही थी, पीएम से आपने टाइम मांगा है, आप पीएम से मिलकर क्या कहना चाहती हैं? चिट्ठी में तो क्या थी, आप अलग से पीएम दिखाना चाहती हैं? से जब मैं मिलूंगी तो मेरे पास में 300 पन्ने की स्कारमेंट की रिपोर्ट है, जिसमें जुहू पुलिस और सीबीआई की चार्जशीट का खुलासा है। मैं उनको वो थमाऊंगी और मैं कहूंगी मेरी बिटिया को जस्टिस दे दो। ये आज मैं सारी हिंदुस्तान की माओ की जगह खड़ी हूं, और मेरी बिटिया हिंदुस्तान की बेटी है। उन सब बेटियों के लिए मैं खड़ी हूं। मैं भी अपने सीने पे पत्थर रख के सुनील किनारा कर सकती हूँ, राइट। लेकिन कोई रीजन है मेरे जन्म का, कोई रीजन है मेरी लड़ाई का, कोई वजह है। और वो हिम्मत और वो जो मुझे मिली है, चाहे सुप्रीम पावर से मिली है, तो उसको मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं, उसको मैं औरों के लिए, औरों के हित के लिए क्यों ना करूं। मुझे कोई बदले की भावना नहीं है। मैंने आपको 200 दफा कहा है। आपके 6 पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स बहुत शॉकिंग है, क्योंकि ये देख के कोई भी बोल सकता है कि सुसाइड नहीं है।
सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो पिक्चर्स हमने देखे उससे ज्यादा शॉकिंग है पिक्चर, कहीं ज्यादा शॉकिंग पिक्चर। सुशांत की भी शॉकिंग, सुशांत की भी बड़ी शॉकिंग है, उसकी जगह जगह ब्रूसेस। इसी तरह मेरी बच्ची के एक और तस्वीर है कि सीबीआई कहती है, नहीं पुलिस कहती है देयर वाज नो स्ट्रगल मार्क। जिया के नेल्स के नीचे खून एंड टिश्यूज हैं। स्ट्रगल करता है इंसान तो आते हैं, किसके ऊपर खरोंचा मारा था उसने, किसके? जब फोरेंसिक लेबोरेटरी आपको कह दिए कि पता नहीं किसके हैं, इनकंक्लूसिव है, तो फिर आप पता लगाइए किसके हैं। आपने तो ये नहीं कहा ना कि हमने मैच किया है क्रिमिनल के साथ में, उसका तो नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जब गई थी घर 11:15 बजे, बोल रही हैं 11:25 में, रूम का लाइट ऑन था या ऑफ था? सारी ऑन थी। हमारे घर में लाइटें इतनी ऑन नहीं रखते हम, आपके घर में उस जिया के अलावा और कोई नहीं था घर में ना? और जिया की तो आदत ही नहीं है, जिया की तो आदत ही नहीं है। और वो ब्लाइंड था। देखिए जिया खान ने, जिसने ग्रिल्स निकलवा दी उसको, तो वो कहती है मम्मी ये ब्लाइंड्स नीचे रख के, कर्टन्स रख के, आप मुझे लगता है जैसे पिंजरे में हूँ। बिकॉज कि लंदन में हमारे पास बड़ा घर है और बॉम्बे में हमारा फ्लैट 2 बेडरूम का, यानी 1,500 1200 स्क्वायर फुट का है, लेकिन बड़ा है, पर उसके हिसाब से तो बड़ा नहीं है ना। तो उसको वो कहती थी कि खिड़कियां विड़कियां लीव इट ओपन, मुझे नहीं अच्छा लगता ग्रिल्स एंड उसके पर पर्दे और ये वो, कोई भी नहीं है आसपास। See, her mentality was very like a free bird. और उस दिन वो ब्लाइंड्स डाउन थे? उस दिन सब कुछ ब्लाइंड्स भी डाउन, दरवाजे भी बंद। हम तो कभी घर के अंदर का तो दरवाजे कोई बंद ही नहीं करता, ना किचन का बंद करते हैं, ना बेडरूम्स के बंद करते हैं, हम तो नहीं करते। एक माँ बेटी तो रहते हैं, हमारे पास कोई लिविंग सर्वेंट तो नहीं है। उसके उस दिन जिया खान के घर में कोई नहीं था, सिर्फ जिया थी। हाँ। और जो कुछ भी हुआ वो अकेले जिया जब थी तब हुआ। सुशांत के टाइम जिया खान अकेले नहीं थी, नहीं जिया खान अकेले नहीं थी, नहीं सुनील, हम और जिया थे, हम दोनों थे। और उस रात को जिया की बहन आने वाली थी उस दिन। नहीं, हम दोनों बाहर चले गए थे, हम दोनों बाहर चले गए थे और कोई पार्टी वार्टी पर नहीं गए थे, वो कोई पार्टी कहीं थी भी नहीं। वो शो देख रही थी कंप्यूटर के ऊपर, और मैं क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अंजू ने कहा था आजा थोड़ी देर के लिए आजा, तो मैं इसलिए गई थी, थोड़ी देर के लिए गई थी मैं। अंजू महिंद्रू क्या गई थी वो कंप्यूटर, लेकिन जिया आपसे पहले घर लौट आई, करेक्ट? इज दैट करेक्ट? हाँ, फिर वो हमको बाद में पता चला सीसीटीवी से कि जिया वापस घर लौट आई थी, क्योंकि सूरज ने उसको फूल भेजे थे, और क्योंकि वो घर में नहीं थी तो सूरज ने उसको फोन किया कि तू घर चली जा, तेरे को मैंने कुछ भेजा है। तो वो घर आई तो उसके सर्वेंट ने, जो देवराज चौधरी है, उसने उसको फूल दिए। आप समझ रहे? उसको फूल को लेके वो उसने फूल फेंक दिए। तो इन लोगों का झगड़ा हो रहा था, इनका झगड़ा पैसे के मामले में हो रहा था कि भैया हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुमने ज्वेलर को पैसे क्यों नहीं दिए, तुम क्या कर रहे हो, मैंने 3 फिल्में साइन की है, मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और वो उसके दिमाग में आया, हो सकता है कि अब मेरा पैसा उड़ा रहा अपने बॉयफ्रेंड के साथ नोवाटेल होटल में। आप so समझ that रहे? means मैम व्हेन यू केम, आप जब पहुंची तो उससे पहले जिया आ चुकी थी घर में, और उस वक्त जिया अकेली थी, करेक्ट? यस, वो आ चुकी थी, और वो उसके घर भी गई, सूरज पंचोली के घर गई, ये सब सीसीटीवी से पता चला। सूरज पंचोली के घर गई, फिर सूरज पंचोली के घर से वापस आई, उसके बाद द टाइमिंग ऑफ द सीसीटीवी चेंज्ड फ्रॉम द कॉल लॉग। The timing of the CCTV, there is about 6-7 minutes. 6-7 minutes बहुत होता है। और ये सब कुछ 2 घंटे में हुआ, जो आप 2 घंटे नहीं थी उस बीच में सब कुछ। यस 2 घंटे, आधे घंटे में तो फोरेंसिक, अकॉर्डिंग टू द फोरेंसिक डॉक्टर्स, द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, ये 4 मिनट भी नहीं, अबाउट 4 मिनट के अंदर अंदर सब साफ हो गया था। Okay. फिर उनको टाइम मिला क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर जिया के केस में
वो अकेली थी, जो कुछ भी हुआ जब तब हुआ जब वो अकेली थी। yes. ब्लाइंड जो आमतौर पर ऊपर रहते ब्लाइंड्स भी थे, नीचे कमरे कर जो दिए, दरवाजे और तो बंद थे, और तो ब्लाइंड्स नीचे थे। yes, yes. और सुशांत के केस में, मैं 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, और सुशांत के केस में 4 लोग क्योंकि घर में थे, तो जो कुछ भी हुआ वो अंधेरे कमरे में हुआ। तो जहां लोग थे वहां अंधेरा कमरा, और जहां कोई नहीं था वहां पे रोशनी ऑन थी, सारे ब्लाइंड्स डाउन थे, दरवाजे खुले, दरवाजे बंद थे, ताकि किसी को कुछ नजर ना आए। यस मैम, गो अहेड, बोलिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम उधर जो उसका जो लोकेशन वो है, अब आप देखिए, ये देखिए, ये जिया आ रही हैं, एंटर कर रही हैं घर में, ठीक है। ये किस वक्त का है? व्हाट ये इज द टाइम? उसी रात की ये अराउंड, ये है, इस पे लिखा हुआ है, ये है 10:34 पर, 10:34। अच्छा ठीक है। हाँ 10:34, ठीक है, मैम, अंदर 10:34 में, और ये मोबाइल पर मैसेज देख रही है, ठीक है। ओके, अंदर आ फिर गई, ठीक है। यहाँ आप देखिए, फुलवाड़ा फूल लेकर आ रहा है, ओके, ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए, जिया खान फूल लेके खड़ी है नीचे, ओके, ओके। ये नीचे का है, ये हाँ हाँ, अपार्टमेंट के नीचे वाला है, या फ्लोर या का है? अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट के नीचे का है। उन दिनों में ये बैल्कनी है, उन दिनों में ग्रिल्स नहीं थी, और देखो कितना कितना नीचे है ग्रिल, के कितना नीचे है बैल्कनी। ओके, ठीक आपको है। आपको मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये है 2 पलंग के बीच में, और जिया के पांव जो है इस पलंग के इधर थे, इस पलंग से लगे हुए, ओके, और पलंग के ओके, वो गद्दे के नीचे, वो पलंग के से टच करते हुए, लटक नहीं रहे ओके, थे हवा में, नीचे थे। ये है वो कमरे का, आप देख रहे हैं कितना ऊंचा सीलिंग फैन है, और आप देख रहे हैं ब्लाइंड्स ब्लाइंड्स कुछ नहीं होती हैं, और सीलिंग सीलिंग फैन के नीचे बिल्कुल गैप है दोनों बेड के बीच। दोनों बेड के बीच में, लेकिन बिकॉज सीलिंग फैन थोड़ा सा एक तरफ, पलंग के एक तरफ, बीच में नहीं है, थोड़ा पलंग के उस तरफ है, एक पलंग से। बस पिक्चर दिखाई मैम, ये वाला हाँ फैन, फैन वाला पिक्चर फिर से दिखाई। देखिए, यस, ये ठीक है फैन जो है थोड़ा सा इस तरफ है। अच्छा, फिर आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जिया और हम जा रहे हैं एक साथ, ये किस गेट वक्त का है? ये गेट से हम बाहर जा रहे हैं, एक सेकेंड, इस पे 21:16, यानी 9:15 बजे जो 9:16, आपने निकले थे दोनों, हाँ 9:15 9:16 पर। आप अंजू मंद्रू के घर जा रही थी, और वो सामने अपने कजन के साथ अपना गेम खेलने जा रही थी, हाँ हाँ, और या वो शो देखने जा रही ये थी, शो देखने? 9:56 को जिया वापस आती है अपने घर, उसको मैसेज आया कि घर जाओ, ओके, तुमको फूल भेजे हैं। 40 मिनट शी कम्स बैक। ओके, हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ, फिर 23:35 को आदित्य पंचोली, अंजू महेंद्रू और उसको लेकर आते हैं घर पर, मुन्नू को। ओके, ये रात आदित्य की बात है। पंचोली, हाँ आदित्य पंचोली नीचे ही रहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। सारा वक्त ऊपर नहीं आते। अंजू महेंद्रू, ये अंजू महेंद्रू है, ओके, अच्छा, ये आपके आने के बाद वो शी केम टू द हाँ हाउस। हाँ, और ये 11:36 पर मुन्नू, जो मोइन है, वो नीचे उतर के आता है आदित्य पंचोली को बताने के लिए कि ऊपर क्या हो रहा है। अब आप बताइए, आदित्य पंचोली इनको लेकर आया है, तो वो क्यों ऊपर नहीं गया, वो क्यों नीचे बैठा हुआ और बातें कर रहा है सूरज पंचोली से। अंजू महेंद्रू मुझे कहती है कि जब हम लोग घर से निकले, तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि तुम जाओ, और अंजू को और मुन्नू को लेके वो आया हमारे घर पर, और वहां पर नीचे ही रहा,
और अंजू और मुन्नू ऊपर जाते हैं, फिर वो लोग फोन के ऊपर हैं, अंजू महेंद्रू और मुन्नू आदित्य पंचोली के, और रास्ते में फ्रॉम अंजूज हाउस टू माय हाउस ये सूरज पंचोली को फोन करता, कहता अपना फोन स्विच ऑफ कर देना और तुम जहां भी हो, तुम किधर हो पहले पूछता है, फिर कहता है तुम अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। इसने उसको कहा तुम सब कुछ डिलीट कर दो, सारे मैसेजेस और सब कुछ। ये जितनी बातें मैम आप बता रही हैं, ये जितनी बातें आप बोल रही हैं, ये रिकॉर्ड पे है कहीं पर? सब सीबीआई के पास है, सब कुछ है, पुलिस के पास भी है, सीबीआई के पास। ये सब मैंने अपने, यस, ये सब मैंने टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ, ये मैं, आई विल नॉट कीप एनी एविडेंस विथ मी, आई विल फर्स्ट गिव इट टू देम। अभी 7-8 साल के बाद मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये दीवार है जिया के बेडरूम के सामने, इसके पीछे सड़क है और इतनी छोटी दीवार है, कोई भी कूद के आ सकता है। अगर पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी में कोई दिखा नहीं, तो हमने कहा कोई नहीं दिखा तो दीवार तो देख लो, साइड की दीवार देखो, यहाँ तो सीसीटीवी नहीं है, ये तो सीसीटीवी कवर नहीं करता, देख लीजिए। आप मुझे बताइए कौन सा बच्चा नहीं कूद सकता ये दीवार? हाँ, अच्छा, और कितनी छोटी दीवार है ये? एक 5 फुट 3 फुट का, 5 फीट 3 इंच का आदमी है जो छू सकता है, और दीवार देख रहे हैं आप पीछे? हाँ बिल्कुल नजर आ रही। मेरा तो ये कहने का मतलब है, और आदित्य पंचोली देखो सारा वक्त वो नीचे था। ओके ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज पिक्चर्स एंड द सिचुएशन जो आपने देखा था मैम, उसके कारण आप कन्विंस हैं कि जिया खान का केस जो है वो बिल्कुल सिंपल केस ऑफ मर्डर, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर, सीसीटीवी के मुताबिक 11:23 में मैं आई हूँ, यहाँ 11:22 में मैं अपने पोर्टिको में एंटर कर रही हूँ, ठीक है? और कॉल लॉग में है कि 11:20 पे मैंने अंजू महेंद्रू को फोन किया है, टू इन्फॉर्म, यस, कि आओ भाई, दिस इज हाउ आई हैव फाउंड माय डॉटर। The call log cannot be wrong. Call log cannot be wrong. Obviously, the CCTV has to be tampered. अब आप बताइए, इस तरह हमारी ब्लाइंड्स रहती थी, दिस इज द एक्चुअल सीन, पर उस जमाने में ग्रिल्स नहीं थी और विंडोज खुली हुई थी। तो वो उस दिन ब्लाइंड्स को गिराया गया। हाँ, ब्लाइंड्स को गिराया गया, सारी लाइट ऑन रखी, सारी लाइट। मैं वही कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ मैम कि जहां पर कोई घर में नहीं था वहां पर लाइंस डाउन किया गया, दरवाजे बंद किए गए और जो कुछ भी हुआ तब हुआ। जहां पर लोग थे, यानी सुशांत के राजपूत के घर में 4 लोग थे, तो वहां लाइट ऑफ करके कमरे के भीतर कर दिया गया ताकि किसी को पता ही नहीं चले क्या हुआ। वहां पे लाइट ऑफ हो गया, सुसाइड लाइट ऑफ करके सुसाइड कर दिया गया, और यहाँ पर सब कुछ ऑन करके सारे ब्लाइंड्स बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए और लाइट ऑन करके जो भी हुआ वो उसके बाद। Yeah, absolutely. And you want to place all these facts before the Prime Minister? Yes, I want to not only this, मैं आपको एक और बताती हूँ। ये देखिए, ये है इसके कान के पीछे ब्रूस, देख रहे हैं? Yes. हाँ, अब आप बताइए ये ब्रूस कैसे आया? जब सीबीआई का ऑफिसर हमको मिला तो उसने बोला जिसने भी इसको मारा है वो ब्लैक बेल्ट टाइकोंडो है, वो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है, बिकॉज वो लोग छट से ऐसी जगहों पे मारते हैं कि अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा। अब मुझे 2 चीज बताइए मैम, इन पिक्चर्स पे जो इंजरी मार्क्स हैं, इस पर मुंबई पुलिस ने क्या बोला और सीबीआई ने क्या बोला? अरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बम्बई पुलिस के, फिर आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात किया, तीनों का बताइए वर्जन की क्या कहा तीनों ने इन इंजरी मार्क्स? बम्बई पुलिस ने तो ये तस्वीरें चार्जशीट पे लगाई नहीं, बम्बई पुलिस ने तो अपने लिप्स को सील कर लिया, उन्होंने तो जिस फोटोग्राफर ने खींची थी उससे तक सवाल नहीं पूछा, जिस वीडियोग्राफर ने वीडियो ली थी पोस्टमार्टम की उससे भी कोई स्टेटमेंट नहीं ली। फिर जब सीबीआई आया, आप कह रही हैं कि ये पिक्चर्स जो है मुंबई पुलिस ने अपने रिकॉर्ड पे नहीं दिया, कोर्ट में नहीं दिया, रिकॉर्ड नहीं रखी, कोई नहीं। फिर आपको कैसे मिली, आपके पास कहां से आई? हमें तो चार्जशीट जब ये लोगों ने केस बंद कर दिया था ना सर, आप समझ रहे हैं, जब बेल से आउट हो गया था,
जब बेल से वो आउट हो गया था, कुछ करीब 4-5 महीने के बाद, बरसात का महीना था मुझे याद है, और मैं बिल्कुल ड्रेंच थी। मैं पुलिस जुहू पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां मैंने चिट्ठी लिखी उनको, और मैंने ऑफिशियली इनसे तस्वीरें मांगी, फोरेंसिक रिपोर्ट्स मांगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मांगे, और मैं रोई वहां पर, बिलक बिलक के मैंने कहा आप लोगों के किसी काम के नहीं है। उस वक्त सुनील, मेरे भी दिमाग में नहीं था कि मैं कोई केस करूंगी या कुछ करूंगी। मुझे बस मेरी बच्ची की पोजेशंस चाहिए थी। आई वाज ओनली प्योरली ऑन दैट सेंटिमेंटल वैल्यू, आप समझ रहे हैं। तो वो ऑफिसर ने मुझे दे दी, मुझे सीडी दी तस्वीरों की, और मुझे सारी रिपोर्ट्स दी, और मुझसे लिख के ले लिया। मेरे पास वो लेटर है जो ऑफिशियली आई एम हैंडिंग ओवर। हाँ, वो हैंडलिंग लेटर है मेरे पास। तो जब चार्जशीट फाइल तब जाके प्लेस किया, तब तक कुछ नहीं किया। हाँ, फिर क्या हुआ, जब ये सब चीजें मेरे पास आ गई और मैं देख रही थी, मैं अपने मियाँ से बात कर रही थी, अपने शौहर से, तो मैंने कहा कि मैं ओपिनियन लेना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आई, मेरी बेटी मेरे को बार बार, मेरी बेटी ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरी तो 1 घंटे पहले बात हुई थी। मेरा दिमाग जो है इतना रेस्टलेस था, इतना रेस्टलेस, मैं बता नहीं सकती आपको, कि क्योंकि मैं कन्विंस थी बिल्कुल इनसाइड मी कि ये मेरी बच्ची तो कर ही नहीं सकती। वो एक होता, माँ से बढ़ के बच्चे को कौन जान सकता है। That's true. That's true. आप समझ, मेरी बच्ची तो ये ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती, जिसको दुनिया से इतना प्यार है, जिसके फ्यूचर प्लान है, जो कंपनी अपनी स्टैब्लिश कर रही है, जो यूथ फैशन में जा रही है, जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जिसकी बहन आ रही है उस रात को, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। दिन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मामा कैसे उसकी बर्थडे के लिए डेकोरेशन करेंगे, और अब मैं 4 बजे उसके साथ ड्राइव करके एक ज्वेलरी शॉप में जाती हूँ, और वो मुझे कहती है उसने कवि के लिए, मतलब उसकी बहन के लिए ज्वेलरी का ऑर्डर दे दिया है। ये सारी बातों को नहीं, मुझे फोरेंसिक एक्सपर्ट से मिलना है। तो मैं बाहा हॉस्पिटल गई। बाहा हॉस्पिटल में एक पैथोलॉजिस्ट हैं जिनको मैंने दिखाया, और मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने देख के कहा मुझे कि मैं अपनी मूछें काट लूंगा अगर ये मर्डर केस नहीं है, तो ये सुसाइड है ही नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे लिख के दे सकते हैं? तो कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता, मेरी बच्चियां क्रिमिनल लॉयर का वो स्टडी कर रही हैं, मैं गवर्नमेंट की नौकरी में हूं, तो मैं नहीं, पर मैं आपको लिटरेचर दे सकता हूँ। उनका मैंने लिटरेचर ले लिया, उसकी कुछ, और उनको जो भी मुझे देना था मैंने दे दिया नजराने के तौर पे। तो फिर उन्होंने मुझे एक क्रिमिनल फोरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में बताया, जे रजानी के बारे में। तो मैं जे रजानी के पास में ये तस्वीरें और ये सब लेकर गई। तो उनकी रिपोर्ट मुझे जब मिली तो मैं पोंडा सर के पास गई, एडवोकेट, और उनके साथ में मैंने ये सारा खुलासा किया। उस जमाने में हमारे लॉयर एडवोकेट थे दिनेश तिवारी, जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया इसमें, और उन्होंने फिर इस पोंडा सर को के साथ बैठ के केस तैयार किया और इसका खुलासा करवाया। ये केस फिर रीओपन हुआ। तो जज ने जब पुलिस ऑफिसर से पूछा कि वो कैसे पाई गई थी, तो उनको पता नहीं था वो कैसे पाई गई थी। तो कभी वो कहते रोप, तो कभी कहते चुप हो जाते। तो फिर हमारे काउंसलर मिस्टर पोंडा, उन्होंने कहा कि सर योर ऑनर, इट वॉज अ मसलिन दुपट्टा, मलमल का दुपट्टा था। तो ये तस्वीरें जो आप लोगों ने देखी हैं, अब आप बताइए ये मलमल के दुपट्टे से हो सकती हैं? किस तरह मैंने धक्के खाए हैं, या तो वो कान बंद कर लेते थे लोग, या आंखें बंद कर लेते थे। और ये अंजू मैक्सवेल देख रही है, एक दफा उसने आवाज नहीं उठाई है। हाँ, राबिया ने कहा इंजरी मार्क्स है। यस, मैं ये तस्वीरें देख रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये तो मलमल के दुपट्टे से थी, तो ये इंजरी कैसे आई है? तुमने तो दोस्ती में, तुम तो एक आस्तीन का सांप थी मेरी जिंदगी में, तुम तो कॉम्प्लिसिट थी क्रिमिनल्स के साथ।
नो वंडर तुम मुझे कह रही थी कि इस जर्नलिस्ट से बात मत करो, उससे मत बात करो। और मैंने कहा हरसिंगानी जो वहां आई थी कह रही थी जिया की स्टाइलिस्ट कि हाय बेचारी, इसको सूरज ने मारा, वो मारता था उसको, ये सब खुलासा जो उसने किया उसको शटअप करा दिया, उसको कहा कि मत बोलो, मीडिया बैठी हुई है। फिर पुलिस ने उसको इतना रगड़ा 7-8 घंटे कि उसका स्टेटमेंट ही बदलवा दिया। आज वो रेडार में है ही नहीं। सबको डरा देते हैं ये लोग, धमकियां दे दे के। सुनील, इसमें मेरा केस इज अ ओपन शट केस ऑफ अ मर्डर एंड दे नो द क्रिमिनल। इतने जो झूठ बोले जा रहे हैं किस लिए भाई? किसका शहजादा है वो? इतना कवर अप हो रहा है किसके लिए? सलमान खान अपना लॉयर लैंड कर रहा है, जो मैनेज करता है। सीबीआई ऑफिसर ने जेडी को बोला, जॉइंट डायरेक्टर को, कि सलमान हैज लैंडेड हिज लॉयर। तो इसका मतलब क्या है? आप ये क्या ब्रेकिंग न्यूज है या बहुत बड़ी न्यूज है, या इस न्यूज के पीछे बहुत बड़ा खुलासा है, या बहुत बड़ी सीक्रेट है? मेरा तो केस मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आप लोग खुद बताइए, पब्लिक खुद जानती है क्या है मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है। लेकिन जिनका स्टैंप लगना है, जिनको एंडोर्समेंट करनी है इस केस को, उनके माउथ शट है, उनके कान शट है, उनकी आंखें शट है। एक मैजिस्ट्रेट के पास जब हम गए थे केस को लेकर, उन्होंने, उनके पैर कांप गए, उन्होंने कहा अरे अरे मेरे पास ही मत लेके आओ। फिर एक लेडी हाई कोर्ट में लेडी जज के पास गए, कहते प्लीज टेक अवे दिस केस फ्रॉम मी। 3 जजेस ने अपने सामने से ये केस हटवा दिया। आज मैंने आपके सामने आके मैंने बहुत बहुत बड़े खुलासे किए हैं। जब आप मैम प्राइम मिनिस्टर से मिले, वो वक्त दें, जो आपको कहना है वो कहें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको कहना हो तो व्हाट डू यू वांट टू से और टेल द प्राइम मिनिस्टर? I want to tell the Prime Minister that you have achieved so much. Your relationship with the US, your relationship with the world, the world is looking at India. The world has fought coronavirus, and so courageously. The world needs to know that the system is clean. Today, Brazil has changed their system. They have cleaned their judiciary. Only Prime Minister has got that power to clean the system. And then that is how there will be law and enforcement, law and order, and no mafia will overrule. Today they are overruling Maharashtra. Tomorrow it will be another state, then another state. Then where is in fact a prime minister? If they can topple Maharashtra state, they can topple the government when they will get so powerful. How much time does it take? And every Indian who is standing for Sushant Singh, yes, today they are looking at my case and listening to my case and looking at with their open mind and eyes. They know that this is a case of murder. They are raising their voice, and I say, let us raise it higher and stronger and get these families, closure. Give us also a closure. Let the souls rest in peace. And let those criminals reflect on their crimes and not do it again. Punishment is not my job, but getting the truth to the surface is my duty. That much I can do. Today, every individual has become Sushant Singh's family, and they are standing. But tomorrow, if they go away, then who will be standing there alone? Only the family, only the blood relation. And that makes a lot of difference. When I go to the court, Sunil, if I'm not there and the judge is, and my lawyer is presenting, the judge gets, oh, the family is not interested. So what is your agenda? तो आप कह रहे हैं कि बगैर फैमिली के कोर्ट में या कहीं पर भी किसी भी जस्टिस को मिलना मुश्किल होता है। आप कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली को, जैसे लोग कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली नहीं आ रही, आप भी शायद
उसी का जिक्र कर रही हैं, तो कहीं आपको लगता है बगैर फैमिली के जस्टिस मिलना मुश्किल होता है, ऐसा है क्या? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी फैमिली, यहाँ देखिए पर इट इज टू अर्ली फॉर मी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक जो भी कुछ हुआ है ना, वो फैंस के कारण हुआ है। आपके केस में यानी जिया खान के केस में जो कुछ हुआ है वो आपके कारण हुआ है। तो दोनों केस कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल। सो वेयर डू यू सी दैट, वेयर इज द मीटिंग पॉइंट? क्या लगता है जो जिससे जस्टिस मिल सकता है? यहाँ पर फैमिली खुद को पीछे रखती है, फैंस आगे रखते हैं। आपके केस में आप खुद को आगे रखती हैं और पब्लिक तो थी ही नहीं आपके केस में, उस वक्त कोई खड़ा नहीं हुआ था। जाहिर है हम सब लोग इस बात को शायद उस दिन खड़े हो जाना, मीडिया के तौर पर हमको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। सुनील, मैं ये इस बात को तो नहीं कहूंगी कि it is too early for me to make any opinion about the family. Let me be very, very, straightforward about it. Yes, and the whole entire India is like a family and standing. But I am saying that if entire India stands for Jia Khan and for Sushant Singh and go on and not leave it, not get tired, because the police and CBI wants you to get tired. They want me to. अरे ये तो थकती नहीं है, ये तो बोली जा रही है लाइक लेटली जरीना वहाब। क्या जरूरत है राबिया को प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने की? क्या वो थकी नहीं है? बार 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 आ रही है इतने सालों से, उसको क्या मैसेज ही नहीं मिला? उसको क्या पता नहीं है? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि वो भी एक माँ है, लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है। मेरी बेटी के लिए मैं लड़ती रहूंगी जब तक कि क्लोजर नहीं मिलेगा, चाहे मेरी जान जाए। आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ होगा, फिर किसी और की बेटी के साथ होगा। और ये क्रिमिनल कभी सबक सीखेगा नहीं। आप ऐसे डायलॉग्स बोल के अपने इनफैक्ट क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हैं। यू आर ग्लोरीफाइंग देम, यू आर सेइंग कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे छोटा सा मच्छर मार दिया। ऐसे तो सब लोग बड़े बड़े स्टेटमेंट था, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि कोर्ट ने या सीबीआई ने कहीं ने भी किसी ने भी सूरज पंचोली के अगेंस्ट में कुछ बहुत खास मिला नहीं, और कोर्ट ने उनको जब छोड़ दिया तो राबिया खान नहीं आती है कोर्ट केसेस में, उस चक्कर में मेरा बेटा फंसा हुआ है। तो अगर केस को डिसाइड करना है तो राबिया खान क्यों नहीं कोर्ट में अपियर होती? उनका कहना है कि राबिया खान कोर्ट में अपियर नहीं होती और मेरा केस बेटा फंसा। अपियर ना होती सुनील, अगर मैं अपियर ना होती तो केस यहाँ ट्रायल तक आता? मुझे बताइए, केस तो बंद हो चुका था, केस बंद हो चुका था। केस अब ट्रायल पर आपने जब अपने ऐसे लॉयर को ले लिया जो मैनेज करना जानते हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती के लॉयर को, ऐसे लॉयर को लिया है जो मैनेज करना जानता है, जिसे आप स्मार्ट कहिए या एफिशिएंट कहिए या कॉम्पिटेंट कहिए, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, बट इनको मैनेज करना आता है, राइट? तो फिर आप क्या कर सकते हैं जब आप मैनेज कर रहे हैं फॉर पुलिस टू ओवरलुक द पिक्चर्स मैंने जो आपको दिखाई हैं? क्या जरीना वहाब ने ये पिक्चर्स देखी नहीं? क्या जरीना वहाब की कॉमन सेंस, अंजू महेंद्रू की कॉमन सेंस सवाल खड़ा नहीं करती? क्या सूरज पंचोली की आंखें ये देखती नहीं है और क्या सवाल नहीं खड़ा कर सकती कि हाँ ये राबिया खान के को तस्वीरें जो दिखा रही है वो, इसमें जिया खान की ये इंजरीज वगैरह कहां से हुई हैं, ये कैसे हुई हैं? ये हम भी पता लगाना चाहते हैं। सूरज पंचोली अगर वो कहता है कि ये मेरा लव थी, मेरी ड्रीम गर्ल थी, मेरा सब कुछ थी, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है पता लगाने के लिए? क्या उसकी आंखें देखती नहीं है जो 7 साल से जो मैं आ रही हूं, अभी कोविड की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूं बिकॉज सब कुछ बंद है कोविड की वजह से। अभी तो हियरिंग भी नहीं, 4 हियरिंग पोस्टपोन्ड हो गई हैं। राइट, करेक्ट। कोविड के केस में आप समझ रहे? बहुत ज्यादा यस, राइट। लेकिन अगर कोर्ट मुझे समन करेगी एज अ विटनेस तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? आप चार्ज मारते हैं सुसाइड का जब है मर्डर, और हाई कोर्ट ने कहा है फॉर मी टू असिस्ट द प्रोसिक्यूटर एंड द प्रोसिक्यूटर इज नॉट टेकिंग माय असिस्टेंस बिकॉज प्रोसिक्यूटर सुसाइड पर क्या असिस्टेंस लेगी मेरा? जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं ये पब्लिक डोमेन में भी है, ये सीबीआई के पास भी है और ये पुलिस के पास भी है।
ये कोई they feel you are I'm victimizing not them. opening a Pandora box. And they feel that you are victimizing them. That's what they feel. Yeah, they are playing a victim card, but how long? Then people will start saying, look, the problem is in you. You cannot play your victim card for too long. Do you understand me? The problem is in you. The problem is in your family. Who is managing, who's taking influence of underworld, who's taking influence of political clout. तो मेरे पास तो एक ही आवाज है, वो है होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर. I don't and you have faith in both. I am not a political clout. हो जाएगा, जस्टिस मिलेगा. आपको ऐसा लगता है? देखिए, होप ना होती तो आज कल परसों में ये लेटर ना लिखती. Okay. Justice is God's ways. It comes in its own time and event. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हाथ पे हाथ, your intelligence doesn't tell you कि हाथ पे हाथ लेके बैठ जाओ. Your intelligence tell you, you go on, keep on at it. Knock, knock, the door will open. Why should I leave my horse? From the people of India, fans जो आज खड़े हैं सुशांत के लिए, कि आपको उनसे भी कोई उम्मीद है? You want to make any appeal to them? I want to say, yes, you stand for Sushant, you stand for Jia, you stand for Disha, you stand for such innocent victims whose life has been taken away. And fight jointly, put it together, because the people behind it are same. The scenarios are same. So I am with them as they are with me, and unitedly we can crack it and we can get closure. And it will be such an example, it will go in history. Maybe a law should be formed as Sushant Singh's law, where under this law you cannot have, anybody carrying, peddling, trafficking drugs, or extorting, or nepotism, or all these things can come under that. In England, there are Sarah Penny law, and under that, there are so many things that have gone, which was not there before in law. It has gone and implemented in law. This is the actual human right. This is actual right of we people. We are not saying tooth for a nail for a nail and a tooth for a tooth, an eye for an eye. We are not saying that. We are saying, give us the justice, let us know the truth, and give us a closure. Yes, your daughter was murdered. Yes, and it happened this way. Whether it was done on an impulse, whether it was done planned, whether it was culpable, whatever it was, whether it was a manslaughter. Okay, all right. Yeah, I hope that all of us are together, and I hope that we make a difference, because we will go down the history that we fought, and we fought well. तलवार निकालो. Yeah, please complete. I said तलवार निकालो, so don't take a blunt sword. Take a double-edged sword. Thank you. Okay, thanks a lot. Thanks for coming. So that was Rabia Khan, a mother and a victim. She is seeking justice and now plans to meet the Prime Minister.